Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. Kasif, finally you are back to classes? No, ma'am. What happened? Still there is a scope? Okay. So privatization. Earlier I had also discussed with you what is privatization. Can anybody tell me what is privatization? Yes, class. What is privatization? Yes. Yes, what is privatization? क्लास ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाने का अगर आप लोग मुझे बताओगे। दिव्या शर्मा, yes, Divya, unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, Divya. Where were you? Are not attending any classes? तो ना घर में नाना जी की डेथ हो गई थी तो इस वजह से सब लोग वहां पर थे, इस वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। Okay. And Umesh. Yes, Umesh. Unmute yourself. Umesh, unmute yourself. Umesh, I will not mark your attendance today. Fine. So, Vinny, tell me what is privatization? Vineet, tell me what is privatization? Yes. Yes. Post-independence, India has adopted a very conservative economy that was practically shut to the outside world. But at time when the Indian leaders and economists recognized the need to merge with the global economy. So in 1991, India went through some major very economic reforms. Let us focus on one such aspect of the reform, that is privatization in India. Yes, before 1991, India's base was not on the privatization. But now India is focusing on privatization, right? India is focusing on privatization means earlier India was based on the public sector enterprises. The enterprises were not showing their progress, were not showing any growth, any development, was not contributing in the India's economy. But after in 1991, the government has taken step forward and start privatization. In privatization, India has some major policy changes in their economic ideologies. There were stagnation and slow growth in the economy. Previously, there was a very slow economy. Stagnation means अटकलें थी बहुत ज्यादा, रुकावट थी बहुत ज्यादा, इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत कम थी. टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स, the finance minister Dr. Manmohan Singh introduced some major economic reforms. After that, Mr. Manmohan Singh, who was finance minister at that time, had introduced some changes in our economic reforms. Now we call it the liberalization of the Indian economy. जब हमारी पॉलिसीज में उन्होंने कुछ चेंजेस करे, उन्होंने कुछ रिफॉर्म करे, तो that we called it liberalization, right? So it is known by the name of LPG reform. L stand for liberalization, P stand for privatization, and G stand for globalization, right? Privatization has a very broad meaning in economics. Okay, अगर आप प्राइवेटाइजेशन को अच्छी तरीके से समझोगे तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब बहुत ज्यादा होता है.
जितना आप जानते हो। अभी तो हमें इतना पता है, देयर इज आर टू टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंड प्राइवेट। बेसिकली पब्लिक एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस which are owned by the government, and private enterprises are those enterprises which are owned by a particular owner, not by the government. But in the same way, प्राइवेटाइजेशन में शेयर्स का भी होता है कंसेप्ट, गवर्नमेंट शेयरिंग भी होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है. सो प्राइवेटाइजेशन हैज अ ब्रॉड, एज द डेफिनेशन, प्राइवेटाइजेशन इज सो डाइवर्स. Let us understand the features of privatization. First is ownership measures. Ownership means कि किसका right है, कौन उसके लिए responsible है, ठीक है, किसकी duties हैं. तो ownership measure is known as who is responsible. The ownership of all the public enterprises ultimately shifts to private owners. जितनी भी public enterprises की ownership थी वो धीरे धीरे किसके पास जाने लग गई, प्राइवेट ऑनर्स के पास जाने लग गई. जैसे पहले क्या होता था कि सब कुछ ओन एंड कंट्रोल होगा गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है. कोई भी अगर आपकी फ्लाइट चलेगी तो कोई भी एयर सर्विस थी वो आपकी एयर इंडिया विल डू दैट ओनली, ठीक है. अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि द एयर इंडिया हैज गिवन इट्स राइट ऑफ फ्लाइट टू whom. किसको दिया एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट के राइट टू? यस, Air India has given its right to other. Who is other? मैम टाटा सन्स. Yes. तो उसके पीछे हिस्ट्री बता सकते हो कि वो टाटा सन्स के पास ही क्यों गए हैं? पहले वो मैम टाटा की कंपनी थी मैम. Yes, good. Yes, previously it was the Tata ने सबसे पहले इंडिया में शुरू करा था, and Tata has introduced this aviation industry in India. और उसके बाद जब टाटा ने अपने ही जो फ्लाइट्स थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी थी, डेट वाज नेम्ड एयर इंडिया. बट राइट नाउ अब दोबारा से गवर्नमेंट ने वो किसको दे दी है, टाटा सन्स को दे दी है. फाइन. सो ऑनरशिप बताई गवर्नमेंट ने कि पब्लिक एंटरप्राइजेस की जितनी भी ऑनरशिप थी वो प्राइवेट को देते चले गए. जैसे पहले एयर इंडस्ट्री में, एविएशन में क्या था कि गवर्नमेंट ही था, या बसेस जो थी वो गवर्नमेंट की चलेंगी, ठीक है. बट नाउ स्लोली एंड स्टेडली दे हैड स्टार्टेड द पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट टू, कि कोई भी ओनर है अगर वो एक बस को कैपेबल है बस को खरीदने के, तो वो बस खरीदे और परमिट लेके बस को चलाना शुरू कर दे, सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर बसेस इन आवर लोकेलिटी, सो दैट पीपल कैन गो हियर एंड देयर इजीली, राइट. तो ऑनरशिप मेजर करा कि धीरे धीरे पब्लिक से प्राइवेट, क्या कंट्रोल होता था गवर्नमेंट का, बट ऑन अ लिमिटेड बेस. गवर्नमेंट की इकाई होती थी प्राइवेट पे, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स. दिस इज वेयर वी लिमिट द कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन पब्लिक कंपनी. सम इंक्लूड होल्डिंग कंपनीज स्ट्रक्चर, licensing and restructuring of the enterprises etc. ऑर्गेनाइजेशन के धीरे धीरे मेजर्स चेंज करें, मींस कुछ आपकी क्या करा, लाइसेंसिंग का सिस्टम चेंज करा. पहले लाइसेंसिंग गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को ही देती थी और वो भी क्या होते थे, पब्लिक होते थे. देयर वाज नो लाइसेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर. बट नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, दे हैव स्टार्टेड गिविंग लाइसेंस टू प्राइवेट सेक्टर आल्सो, ठीक है. उनको भी देना शुरू करा जिससे वो भी काम कर सके. जैसे पेट्रोल का पहले क्या था, केवल कुछ ही पंप्स थे, बट नाउ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है रिलायंस को भी दिया. रिलायंस का भी पेट्रोल पंप है हमारे पास, ईसर का भी पेट्रोल पंप है, ठीक है. बट हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है, केवल आपकी भारत पेट्रोलियम है, इंडियन है, इंडियन गैस की है हमारे पास, ठीक है. बट धीरे धीरे किसको भी देना शुरू करा, रिलायंस वगैरह को, इन सबको भी इंट्रोड्यूस करा सिस्टम के अंदर. कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया. व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया? क्या कंसेप्ट है इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन का? पहला ये था कि डेलीगेशन. डू यू कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन? ये वर्ड बहुत यूज होता है आपका मैनेजमेंट में. आपने ओबी वो पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में, बीओ में भी यूज हुआ होगा ये वर्ड आपका, डेलीगेशन.
Yes, tell me the meaning of delegation. Class, I will mark absent for all of you if you people not reply. Yes, tell me the meaning of delegation. Yes, class, what is the meaning of delegation? All are sleeping in a very high mode. No one wants to interrupt in their sleeping. Sandeep Bhardwaj, tell me the meaning of it. रिप्रेजेंट करना मैम. Okay. Any other? Yes, बताओ. Yes. What is the meaning of delegation? Just hold on, class. डेलीगेशन मीन्स होता है कि पहले आपको क्या था कि जितने भी हमारे राइट्स थे वो सब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के पास थे. ठीक है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के पास राइट्स थे, बट गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी अथॉरिटी को प्राइवेट सेक्टर को देना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उनका कंट्रोल होता था उनके पास, बट दे स्टार्टेड गिविंग देयर अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर. तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन. जब हम अपनी अथॉरिटी किसी को दे देते हैं, डिसीजन मेकिंग किसी और को दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन. सपोज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजंस फॉर योर सब्जेक्ट, but for the meantime I go somewhere and I give my subject to anybody else, and so it means I am giving my authority to him or her to take the decision for you. That is known as the delegation. Right. However, the private company will handle the daily activities and deliver the product or services. The state will remain an active participation in the process. जो भी सारा वर्क होगा, जो भी all the things would be done by only private sector. Only the state will keep an eye on the working of the private sector. Likewise, previously there was the government colleges, but later on the private colleges were set up under the guidelines of the state government, right? So this is called the keep an eye. Next is divestment. The government will sell a majority stake of the enterprises to one or more private companies. It may keep some ownership, but will be the minority stakeholder in the enterprises. तो गवर्नमेंट क्या करती थी, divestment का मतलब होता है the government will sell a majority stake of the enterprises to one or more private companies. It may keep some ownership, but with the minority stakeholder in the enterprises. Government क्या करती थी, कुछ फॉर्म्स आपने सुनी होंगी, they are semi government. Semi government means कि कुछ फॉर्म्स जो है अपनी आई रखती थी कि अपने जो यहाँ के जो शेयर्स होते थे उन्हें लगता था कि इस सेक्टर की प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है, तो उस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज को दे दिया, उसमें अपने पास कुछ परसेंटेज रखना. दैट इज कॉल्ड द डिवेस्टमेंट. मतलब अपने शेयर मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर को देना और उसका एक छोटा सा पार्ट अपने पास रखना. दैट इज कॉल्ड द डिवेस्टमेंट. Third is displacement. The first step here will be the deregulation. This will allow private players to enter the market. In addition, slowly and gradually, the private company will displace the public enterprises. Displacement means कि पहले धीरे से क्या होना शुरू हो गया, deregulation स्टार्ट हो गया. उसमें क्या हुआ,
कि हमने प्राइवेट कंपनीज को आना अलाउ करा, यस दे कम एंड ज्वाइन द मार्केट सो दैट द ग्रोथ विल पेस अप। उन्होंने धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, राइट। हियर द प्राइवेट सेक्टर विल कोऑपरेट विद पब्लिक कंपनीज एंड अल्टीमेटली outer form then causing the public enterprises to be displaced। तो इसमें हमने क्या करा, पब्लिक एंटरप्राइजेस को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, मींस पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ बढ़ने लग जाए। ठीक है, डेलीगेशन मींस हमने क्या करा, अपने जो पब्लिक सेक्टर के राइट थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को देने स्टार्ट कर दिए। डिवेस्टमेंट में जो कंपनीज के शेयर थे मैक्सिमम पोर्शन प्राइवेट के पास रहता था एंड अ माइनॉरिटी पार्ट इज विद द पब्लिक सेक्टर। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस all the public enterprises were slowly and steadily were replacing by the private ownership। Next is disinvestment, direct selling a portion or whole of a public enterprises to private parties। धीरे धीरे the government has started selling up their firms to the private enterprises, right। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्या क्या एडवांटेजेस हुई प्राइवेटाइजेशन की। एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आप मुझे ये बताइए, और एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन और एज एन एडल्ट हु इज डूइंग बीबीए इन एंड स्टडीइंग इन बीबीए सेकंड ईयर, तो आप मुझे ये बताओ कि इफ वी पीपल कि आपको किसकी जो वर्किंग है वो ज्यादा अच्छी लगती है, पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर की वर्किंग अच्छी लगती है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। इफ यू लाइक पर प्राइवेट सेक्टर सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की वर्किंग पब्लिक सेक्टर से अच्छी क्यों है, क्या रीजन है प्राइवेट सेक्टर वर्क कर पाते अच्छे से। कुछ भी बताओ मुझे प्राइवेट सेक्टर का आपको जो उसके बारे में अच्छा लगता है। यस Yes. What do you like about the private sector? क्या पसंद है आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में ज्यादा, क्या लगता है आपको व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। दिव्या शर्मा टेल मी व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। यस यस व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, दिव्या शर्मा। कोमल टेल मी व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। कोमल टेल मी व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। मैम जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। ऑनर कौन होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। मैम यही होते हैं नॉर्मल लोग ही। नॉर्मल लोग मतलब मुझे ओनरशिप डिफाइन करो बेटा, किस टाइप से डिफाइन करोगे। अगर उसमें बोला जाए कि ओनरशिप किसकी होती है तो वो मुझे कैसे डिफाइन करोगे आप, ये बताओ मुझे। मैम पता नहीं। ओके, private sector is that sector in which the ownership is maintained by the not by the government, only by a single owner। ठीक है, कोई भी एक सिंगल ओनर होता है या पार्टनरशिप में फॉर्म होती है, बट इट इज नॉट मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट कंपनीज हैव अ बेटर इंसेंटिव देन पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के इंसेंटिव हमेशा कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं देन द पब्लिक कंपनीज। द मैनेजर एंड ऑफिशियल्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी हैव स्किन इन द गेम। जो मैनेजर्स और ऑफिशियल्स होते हैं पब्लिक कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के, उनकी जो वर्किंग होती है वो बहुत ज्यादा हाई फाई होती है। दे आर अ very smooth functioning and they work in a proper method, right। In a public company there is a lot of political interference। public company के अंदर there is a lot of political interference। public
कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट टर्न होती है तो गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होते हैं. दिस में dissuade the company from taking economically beneficial decision. इस चीज में क्या होता है कि हम कंपनी के इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं ले पाते हैं अच्छे से, ठीक है. और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके अंदर पॉलिटिकल फैक्टर्स का कुछ भी यूज नहीं होता. मींस कि जितने भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो प्राइवेट ओनर्स उनको इन्फ्लुएंस नहीं करते, उनको एंटरटेन नहीं करते. जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चलता. दे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फॉर्म पीछे ना रह जाए. दे वांट टू प्रोग्रेस, दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. देयरफॉर द ऑल द इंटरफेरेंस मेड बाय द पब्लिक सेक्टर, मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, they do not entertain those people. Next है, in a public companies at the times the government can only think about the upcoming election, so all their goals may be short time in the process of trying to gain favors for the public voting. हमेशा जो पब्लिक कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टर्म के बेनिफिट लेते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है आफ्टर 5 years इलेक्शन होते हैं तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने टाइम पीरियड में छोटे छोटे प्लान्स बनाती है, ऑब्जेक्टिव बनाती है और उनको फुलफिल करती है so that they can satisfy maximum of the population. They do not work for the public, they work for their publicity. But what happens in private term, they make plans in the long term also and in the short term also, जिससे कि वो अपनी कंपनी को लंबे टाइम तक सरवाइव कर सके and they can benefit a lot for the public. क्यों करती है पब्लिक इंटरप्राइजेस? सारा किसके लिए काम करती है? They all work for the welfare of the customer, they all work according to the perspective of the consumer, they all work according to their requirement of the customer. So who has muted themselves? Please unmute. Ajay. Next है, in public sector privatization will also increase competition in the market. प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. प्राइवेट कंपनीज का हमेशा रहता है कि प्रोडक्ट अपग्रेडिंग में लगे रहते हैं, प्रोडक्ट को पॉलिश करने में लगे रहते हैं. जैसे अभी आपने क्या करा, एक कॉम्प्लेन निकाला किसी कंपनी ने, ठीक है, उसने उस कंपनी ने उस कॉम्प्लेन को एक फ्लेवर में निकाला, डेट इज चॉकलेट फ्लेवर. बट लेटर ऑन दूसरी कंपनी आई मार्केट में, उसने कॉम्प्लेन के जैसे टेस्टी दूसरे नेम से इंट्रोड्यूस कर दिया. इन दैट उसके अंदर उसने बहुत सारे फ्लेवर्स डाल दिए अलग अलग, ठीक है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंपटीशन कि ठीक है आपने अगर एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा मार्केट में, आई एम आल्सो इंट्रोड्यूसिंग अनदर प्रोडक्ट व्हिच हैज सर्टेन बेनिफिट्स नॉट रिलेटेड विद द सेम प्रोडक्ट एंड विद द न्यू वर्जन्स, ठीक है, नई नई चीजों के साथ आया है. तो प्राइवेटाइजेशन हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करता है, ठीक है. जैसे किसी ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनता है, लाइक कोई हमारी एलसीडी है, तो उस एलसीडी में क्या होता है कि एक कंपनी ने एक नया फीचर डाला तो दूसरी कंपनी क्या करती है, जब उसके लेटेस्ट वर्जन को देखती है कि क्या अवेलेबल है मार्केट में, तो उसमें +1 फीचर ऐड करके उसको मार्केट में सेल करने की कोशिश करती है. जिससे क्या होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है, कस्टमर के लिए एक नई प्रेफरेंस बनती है. बट पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, तो दे solely cannot take decision, but private can take decision by themselves in that form. तो उनके लिए इजी होता है किसी भी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना. नेक्स्ट इज योर लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मैंने आपको बताया था आफ्टर 1991 रिफॉर्म देयर 3 terms arise known as LPG. L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. What happens in liberalization? In simple word, liberalization refers to a relaxation of government restrictions in the area of social, political and economic policies. कि जो भी कोई गवर्नमेंट जो भी कोई ट्रेड करना चाहता है
कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, तो गवर्नमेंट इज रिलैक्सिंग इन ऑल दोस पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नमेंट उन सब पॉलिसीज पे क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू लीजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट एंटिटीज। क्यों करा गवर्नमेंट ने ऐसा, अपनी पॉलिसीज को रिलैक्स क्यों करा, अपनी पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ज्यादा स्लो क्यों करा? गवर्नमेंट ने इसलिए ही करा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा वो प्राइवेट कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके, उनको बुला सके, उनसे कहे कि वो इनिशिएटिव ले बिजनेस करने का। ठीक है, लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स दे। प्राइवेट कंपनीज ही तो लोगों को प्रोडक्ट देती है, कॉपी करती है नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स को। ठीक है, उनको कॉपी करके उनको डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करती है। हर कोई ओरिजिनल तो नहीं ले सकता ना। समवन वांट्स फर्स्ट डुप्लीकेट, समवन वांट्स सेकंड डुप्लीकेट। सो दिस इज ऑल व्हाट कॉल्ड द government has done, introducing encouraging the private companies, right? It is the process to removing control system in order to encourage economic development. Government का जो control system था, government जो सारा का सारा trade and commerce संभाल रही थी, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उस ट्रेड एंड कॉमर्स पे थोड़ी सी डील देनी शुरू करी। जैसे आपका कोई भी घर में कहते हैं बच्चा होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, तो पेरेंट्स उसको बहुत कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, उसको कोई अकेले जाने नहीं देते, जाएगा तो खो जाएगा। बट आपके घर में कोई भी रिलेटिव आता है तो वो आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर आप इसको छोड़ोगे नहीं तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, ये काम करेगा कैसे? तो गवर्नमेंट हैज आल्सो डन द सेम थिंग। गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट कंट्रीज को, थोड़ी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स को ढील दी, उनको एनकरेज करा, सो दैट कि वो भी कंपटीशन में आए, वो भी मार्केट में आए, एंड दे विल डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। Next is your third. The economy is thrown open. The best goods and services compete in the market. The consumer has a choice and monopolies disappear. तो इसमें क्या हुआ आपका? The economy is thrown open. इकोनॉमी को छोड़ दिया गया खुला, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करे जाए। जैसे आपका ट्रेड फेयर होता है, ठीक है, उसमें आपकी स्टॉल्स होती हैं, स्टॉल्स में लोग जाते हैं, अलग अलग नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज कर दिया कि ठीक है, हमारी पॉलिसीज अब बहुत कम है पहले के कंपेरिजन में, और जितनी कम हमारी पॉलिसीज होंगी उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, वैरायटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और लोगों के पास चॉइस होगी, और मोनोपोलीज क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, बिकॉज प्रीवियसली देयर वाज अ मोनोपोली बिहाइंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इन इंडिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज इनिशिएटेड इन 1991 and with the goal of making the economy more market oriented and expanding the role of private and फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमने क्यों गोल बनाया कि अपनी इकोनॉमी को हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड कर सके, हमारे यहाँ मार्केट डेवलप हो, नए नए प्रोडक्ट बने। ठीक है, और जो फॉरेन बाहर के लोग हैं वो हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। These include partial, sometimes full privatization of government institutions. क्या क्या था यहाँ पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी थे उनको हमने सबको प्राइवेट कर दिया धीरे धीरे करके। इंस्टीट्यूशन एंड एसेट्स, ग्रेटर लेबर मार्केट, टैक्स रिबेट फॉर बिजनेस, रिड्यूस रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड ऑफशोर कैपिटल, ओपनिंग मार्केट, फ्री ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे ज्यादा। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स एनकरेज करने लग गए हम लोग। देयर हैज बीन अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन इंडियन इकोनॉमी सिंस द exposure of the new economic strategy in 1991. This had great impacts on all the areas of life in India. इस इकोनॉमी में क्या हुआ, इंडिया की पूरी इकोनॉमिक लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करा। जितनी भी हमने ये लिबरलाइजेशन करा, प्राइवेटाइजेशन करा, जब भी हम कोई नई चीज करते हैं, हम नई डिश बनाते हैं तो कुछ नया निकल कर तो आता ही है ना, नया टेस्ट आता है उसका। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द, कि ऐसे हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ ना कुछ जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको चेंज करा, और उसकी वजह से हमारे यहाँ एक नया इकोनॉमिक सिस्टम निकल के आया। When a nation becomes liberalized, the economic effects can be intense for the country as well as for the investors. Next,
Economic liberalization is relaxing the government regulation in a country to allow the private sector to operate business transactions. Economic liberalization is relaxing the government regulation in a country to allow the private sector to operate business transactions with comparatively few restrictions. Economic liberalization मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारी कंट्री को रिलैक्स कर दिया, प्राइवेट कंपनी को रिलैक्स कर दिया कि वो अपने बिजनेस के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस करे, जो जिसमें उनको फीवर रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत कम उनके लिए हिंड्रेंस है, वो जितना चाहे उतने तरीके से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं. द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया रेफर्स टू द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन of the country's economic policy with the goal of making the economy more market oriented and expanding the role of private and foreign investment. क्या चाहते थे हम लिबरलाइज करके? हम ये चाहते थे कि हम अपनी मार्केट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बढ़े, एक्सपेंशन बढ़े, प्रोडक्ट का सर्विसेज हो, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज का एक्सपेंशन हो, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हो, कंपटीशन हो, ठीक है, सर्विसेज में भी कैटेगरी हो. दिस इज ऑल वी वांट फ्रॉम this liberalization of policies. Indian government agreed to the condition of lending agencies and announced new economic policies which consisted wide range of reforms. Broadly, we classified the measures in two groups. That's why India has described the new policy that is known as the new economic policy. That was divided into two parts. First is structural reform and second is stabilization measure. Structural reform में क्या था? With long-term perspective and eyeing for improvement of the economy and enhancing the international competence, reforms were made to remove rigidity in various segments of Indian economy. कि मतलब हम क्या करें, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज करें कि जिससे हमारे यहाँ पे जो एक किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा रूड है कि हम वो चीज नहीं फॉलो करेंगे, उस चीज से ऊपर उठ के हमने काम करना शुरू कर दिया. स्टेबलाइजेशन मेजर्स, in that we have three terms: liberalization, privatization and globalization. हमने इन तीन चीजों पे मेज वर्कआउट करा. लिबरलाइजेशन आई हैव टोल्ड यू, privatization I have told you, moving head to globalization. Just wait. Globalization, it means to integrate the economy of one country with the global economy. It means कि हम जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उस पूरे के साथ अपनी कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, उसके साथ मिलाना चाह रहे हैं. उसके साथ मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. एनीवेयर वी कैन सेल आवर goods, anywhere we can buy, from any location we can buy the goods for improving the quality, right? During globalization, the focus is on foreign trade and private and institutional foreign investment. It is the last policy of LPG to be implemented. ये LPG की last policy थी globalization. Globalization as the term has a very complex phenomena. The main aim is to transform the world towards independence and integration of world as a whole by setting various strategic policies. ठीक है, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या करा? स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनानी फ्रेम स्टार्ट करी. ठीक है, बड़े लेवल पे पॉलिसीज बनानी. नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन मींस बॉर्डरलेस वर्ल्ड. मतलब किसी भी कंट्री का कोई बॉर्डर नहीं है डिस्कस करने के लिए. We will be treating every all the countries as a world, all the country as a market. ठीक है, पूरी कंट्री हमारे लिए मार्केट है, हम कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. Where is the need of one country can be driven across the globe and turning into one larger economy. इसमें मतलब अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कुछ भी खरीदने की तो we can buy it from some other country too, right?
आदिल खान, अजय। यस मैम। अजय एक बात बताओ, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ क्लास में तो आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? मैम मैं बाहर था जी उस टाइम। नहीं, am I fool taking your class? What you people think about yourselves? I asked to Mesh, I asked to many of the participants, even Vineet too. He was not replying for anything. सॉरी मैम, आगे से ध्यान रखेंगे। क्लास में आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, इवन आई वाज थिंकिंग कि हाँ आप लोग सुधर जाओगे, कुछ रिप्लाई करोगे। मैंने पहले भी वार्न करा था क्लास को। अमन है, अमन बिल्कुल शुरू से ज्वाइन करेगा, एंड तक ज्वाइन करेगा, पर बीच में किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन टू गिव रॉन्ग आंसर्स? From my side, it is whole class is absent. Do whatever you want to do. You have the same attendance ही चाहिए ना तुम्हें, मैं दे ही नहीं रही हूँ किसी को। I'm not fool making notes for you, making everything for you. Whole class is absent from my side. You just came in, mute yourself, do whatever you want. Here I am fool wasting 40 minutes with you. इस किसी का कोई इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आई एम रेडी टू शेयर इट विद यू, आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद यू। बट दिस इज नॉट द वे। दिव्या शर्मा, she is feeling herself, I don't know what, not replying even a single question. Vineet, I will call your brother, that is definite. There is no way to mute yourself and join the classes. You need to answer yourselves. Daily basis, I am seeing everyone. If today Sunidhi is not present in the classes, nobody is going to give me answer for anything. शुभम, आपको परमिशन है क्लास ज्वाइन करने की? यस शुभम। यस शुभम, आपको परमिशन है क्लास ज्वाइन करने की? कौन सी दीदी? तो मेरी अटेंडेंस उसमें सेंड ही करती होगी लड़की में, है ना? मैं जाऊँ फिर? हो गया ना? किसी अटेंडेंस मीटिंग में आ जाना। 11:30 बजे। Yes. Do whatever you want. Next time I will not. मैं किसी की भी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी।